the new chapter, that is alcohol, phenols and ethers. Here the alcohols and phenols both are the hydroxy derivative of the alkane and ethers are the alkoxy derivative of the alkane. So in that case we simultaneously study about their classification, nomenclature as well as method of preparation. So first one is we studied about the alcohols. We know that the main functional group that alcohols is bond OH. That is this bond is filled up with the or it is satisfied by the any alkyl group. It may be ethyl, it may be ethyl, propyl, butyl, whatever it is. Okay, but bond OH represent, if we take it as a bond, then this bond OH represents the alcoholic group, or we can say that this alcoholic group is represented by the hydroxyl group which is attached to the alkyl group or the aride group. If this alcohol is attached with the alkyl group, then it is called as the alcohols. But if this hydroxyl group is attached with the aromatic ring, that means benzene, then it is called as the phenols. तो यहाँ पर हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद ईथर्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अल्कोहल्स क्या है? Alcohols, it is the derivative of, it is nothing but the, it is a hydroxyl derivative. क्यों hydroxyl derivative? क्योंकि यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा. It is a hydroxyl derivative of alkane. That means what? कि alkane में का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ पर कौन आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे CH4, तो CH4 का एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस होगा और वहाँ पर कौन ऐड होगा? OH माइनस आयन वहाँ पर ऐड होगा. तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा रहेगा? इथिल अल्कोहल. मतलब अल्केन से यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है? अल्किल अल्कोहल फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पर अल्केन जितने भी कार्बन का रहेगा उतनी ही कार्बन का अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा. सिर्फ क्या रिप्लेस हुआ है? मतलब अल्कोहल किस तरह से फॉर्म? सिंपल इट इज कॉल्ड एज, जैसे अल्किल हाइड को क्या बोलते हैं? इट इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किल. सिमिलरली अल्कोहल को क्या बोलेंगे? इट इज अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच द हाइड्रोजन ऑन द alkane is replaced by the hydroxyl group, then the resulting compound is called as the alcohol. So this alkyl alcohol in which or the alkyl group which is present here, it may be a simple alkyl group, that means it is the saturated hydrocarbon, as well as it is the unsaturated hydrocarbon, as well as it is the aromatic hydrocarbon. So depending on that their classifications are given. So first one is that alcohols is nothing but the, it is a hydroxyl derivative of alkane. Now the next one is the phenol. अब phenol क्या है? अगर alkyl alcohol की जगह पर हम यहाँ पर phenol को ऐड करेंगे, मतलब अगर phenol कंसिडर कर ले तो phenol में aromatic ring present है, phen. This represented the benzene ring. benzene को दूसरे नेम से लैटिन वर्ड में बोला जाता है phen, और उसमें OL ऐड हुआ है. मतलब अल्कोहल का जो सफिक्स है वो सफिक्स क्या है? ई निकल कर वहाँ पर पहुँच जाएगा अल्केन का ई निकल कर, ई इज रिप्लेस्ड बाय द OL. देन दिस अल्किल अल्कोहल इज कॉल्ड एज द अल्कैनॉल. तो रिजल्टिंग कंपाउंड इसमें जो भी रहेगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तो अल्केन में का हाइड्रोजन निकल कर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा तो उस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? अल्कैनॉल बोलेंगे. Okay, so alkane and E replaced by the OL which is called as the alkane. Second one is the phenol. Phenol, the name of the aromatic alcohol, it is accepted by the common nomenclature as well as accepted by the IUPAC nomenclature. ये phenol name जो है वो IUPAC के थ्रू पे एक्सेप्ट किया गया है as well as common name के थ्रू पे एक्सेप्ट किया गया है. तो phenol में क्या है? phen मतलब बेंजीन रिंग और OL मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं टोटल ऑन द 6 कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन और हेक्सागोन. तो वहाँ पर कौन से भी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, एक से कम भी रह सकते हैं. तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? फिनॉल. तो हम सिंपली जैसे अल्किल के लिए R डिनोट करते हैं वैसे ही फिनिल है, फिन मतलब बेंजीन रिंग,
बेंजीन मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं यहाँ पर, AR, बिकॉज इस एरोमेटिक रिंग को हम जनरली बेंजीन, इट इज द एग्जांपल, बेंजीन का ही दूसरा नाम क्या है, फिन, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ द एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग को हम जनरली क्या बोलते हैं यहाँ पर, अरिन, तो अरिन के अकॉर्डिंग इसका सिंबल क्या आएगा, AR आएगा, तो यहाँ पर R की जगह में कौन आएगा, AR, और इसको अटैच रहेगा OH, so this one is called as the aryl alcohol, सिंपल, जैसे यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब ये जो कंपाउंड फॉर्म है, दिस वन इज द अल्किल अल्कोहल, और यहाँ पर क्योंकि जनरली यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, R के लिए अल्किल रिप्रेजेंट करते हैं, और OH किसे रिप्रेजेंट करेगा, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा, so generally it is called as the alkyl alcohol. Now AROH है, तो AR को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अरिल बोलेंगे, अराइल, और OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे. So the general name of that phenol is nothing but the aryl alcohol. So the definition क्या होगा, again it is a hydroxy derivative of, ये अल्केन है, यहाँ पर क्या आएगा, एरोमेटिक रिंग आएगा या फिर अरीन आएगा, मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अरीन, and it is IUPAC. In that IUPAC nomenclature it is called as, अब अरीन में का E निकाल कर OL नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, ओके, तो बेसिकली यहाँ पर लिखा जाएगा फिन, because it is the first one example of that compound, so generally it is called as the phenol, as well as it is also called as the benzene, benzene का E निकल कर यहाँ पर कौन आएगा, OL आएगा. So this alkanol and the benzenol, these names are IUPAC accepted name, मतलब ये नाम जो यहाँ पर लिखे गए हैं वो कौन से नाम है, IUPAC accepted, और यहाँ पर अल्किल अल्कोहल और अरिल अल्कोहल के फॉर्म में जो भी नाम दिया गया है, दिस वन इज accepted by the common name. Now next one is that, अब यहाँ पर देखो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में सिर्फ डिफरेंस किसका है, अल्किल ग्रुप और अरिल ग्रुप का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अल्किल ग्रुप कौन सा भी हो सकता है, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, ब्यूटिल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रहेगा, और यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप में भी फिनोलिक ग्रुप एक ही हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर OH एटम अटैच रहेंगे. सो नाउ हियर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स आर गिवन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. सो अब क्लासिफिकेशन में क्या है, अब अल्किल अल्कोहल में एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट रह सकते हैं, उसी तरह से फिनॉल में भी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रह सकते हैं. इफ द चेन इज इन अ लॉन्गेस्ट मैनर, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज प्रेजेंट, देन मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन दैट डिफरेंट और एडजेसेंट कार्बन एटम. OH ग्रुप, एक OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन पर रहेगा, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट फॉर्म में या फिर 6 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो हर एक कार्बन पर OH प्रेजेंट रह सकता है. अकॉर्डिंग टू दैट इट इज क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड वन इज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, एंड फोर्थ वन इज द पॉलीहाइड्रिक. अब पॉली मतलब 3 से ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, सो अब हम फिनॉल के लिए एज वेल एज अल्किल अल्कोहल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर द अल्कोहल एंड सेकंड वन इज फॉर द इफ ओनली वन अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मतलब क्या, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहा तो उसको मोनोहाइड्रिक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब मोर देन 3. तो यहाँ पर मोनोहाइड्रिक है, मतलब हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3OH, इट इज नथिंग बट द सिंपली CH3. अब इस अल्काइल ग्रुप का नेम क्या होगा यहाँ पर, मिथाइल अल्कोहल. Okay, now the second one is dihydric. Dihydric है, that means 2 hydroxyl group present on the 2 carbon atom.
मतलब अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो दो कार्बन का होना जरूरी है, एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पर एक OH, इस कार्बन पर एक OH, दैट इज दिस वन इज कॉल्ड एज दिस बोथ कार्बन हैविंग ओनली 2 हाइड्रोजन on that. So here this one group is called as the alkyline group, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन कार्बन पर जब दो हाइड्रोजन रहेंगे तो उसको अल्किलिन ग्रुप में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दो कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड एज द, अब दो कार्बन है उसके लिए इथीन इथेन होगा, लेकिन ये अल्किलिन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए इसका नाम रहेगा इथीलीन, इथीलीन। और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसको बोलते हैं glycol. So the name of that compound which containing two hydroxy group on adjacent carbon atom, this one is called as the ethylene glycol. Now the third one is the trihydric alcohol, मतलब यहाँ पर एटलीस्ट कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे और हर एक कार्बन पर क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। So this one is called as the glycerol और ग्लिसरीन। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, जो हम ठंड के दिनों में यूज करते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए। सो दिस वन इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल, दैट इज द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, एंड द फोर्थ वन इज द पॉलीहाइड्रिक, दैट मीन्स मोर देन 3 कार्बन एटम इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। So this one is called as the 6 hydroxy group है, this one is called as sorbitol। ओके, इसका नाम क्या है यहाँ पर, sorbitol, ये इसका नाम है अगर 1 से 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तो। So these are the classification of the alcohols depending on the how many hydroxyl group attached to the carbon, attached to the how many carbon atom. So according to that it is called as the monohydric, dihydric, trihydric and the polyhydric alcohol. Now the second classification is of the phenols. अब phenols के कौन से classification यहाँ पर दिए गए हैं, so look at here, अगर phenol में बेंजीन रिंग को सिर्फ, अब बेंजीन रिंग को हम इस तरह से सिंपली शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है, सो ये एग्जाम्पल रहेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, विच इज नथिंग बट phenol, actual name of that is phenol. Now the dihydric alcohol मतलब एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहे तो। ओके, so this one is called as the benzene 1,2-diol और डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, अगर ये 1,2 पर रहा तो यहाँ पर बेंजीन 1,2-डायोल, अगर ये 1,3 पोजीशन पर रहा तो बेंजीन 1,3-डायोल, अगर 1,4 पोजीशन पर रहा तो बेंजीन 1,4-डायोल। अब दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए अल्कोहल का जो सफिक्स यूज करते हैं हम, दैट इज ओएल, क्योंकि बेंजीन ओएल लिखना है हमें। ओके, जब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू IUPAC बेंजीन का नाम हमें पहले लिखना है। तो यहाँ पर जो ई आएगा, अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट है तो यहाँ पर ई रिटेन होगा, मतलब वापस आएगा, तो ई वैसे का वैसे रहेगा। ई लिखने के बाद यहाँ पर ओएल एक से ज़्यादा है, मतलब 2 पोजीशन है, तो उस 2 पोजीशन को मेंशन करना है और ओएल के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्सेस लगाना है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं फिनॉल या फिर बेंजेनॉल, इसका सिंपल। यहाँ पर अब ऑर्थो पैरा पोजीशन, बिकॉज कॉमनली वी कैन गिव द पोजीशन बाय द ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर से हमें इसको डिफाइन करना है तो हम इसको बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं। बेंजेनॉल मतलब अगर एक से ज़्यादा अल्किल ग्रुप है तो यहाँ का ई वापस आएगा और ओएल की पोजीशन यहाँ पर मेंशन होगी, और कितनी OH की पोजीशन है, कितने OH प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्सेस वहाँ पर यूज होंगे। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1,2
triol. Okay. Now if the three group is present on that OH, ये तीनों भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इक्वी डिस्टेंस में भी प्रेजेंट रह सकते हैं एज वेल एज इस मैनर में भी प्रेजेंट रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर ये एक साथ मतलब रेगुलर मैनर में अगर अटैच्ड है तो इसकी केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, और अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे मतलब पहले वन पोजीशन पर, दूसरा थर्ड और बाद का फिफ्थ पोजीशन पर मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है, तो तब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो इसका सिंपल नाम क्या होगा यहाँ पर, बेंजीन। अब 1 2 3 पोजीशन है, 1 2 3, अब 3 है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर ट्राई, और बाद में लगाएंगे OH, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राई। और अगर 4 है तो 4 के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बेंजीन पर मैक्सिममली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, 3 से ज़्यादा रह सकते हैं लेकिन रेयर, मतलब हम उसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं या फिर एक बार हो सकते हैं एक से ज़्यादा या फिर 6 भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 हमें पोजीशन दिखाई दे रहे हैं, 3 पोजीशन इक्वी डिस्टेंस पर भी हो सकता है, लाइक इन दैट मैनर। तो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पर होने की वजह से इसकी both are the examples of the trihydric alcohol, but depending on the position of the hydroxyl group on that benzene ring, it has different physical property as well as the chemical property. तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, बेंजीन 1 3 5 ट्राई। ओके, तो ये इसका नेम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसके भी क्लासिफिकेशन दी है। मतलब अल्कोहल और फिनॉल में उसके नॉमेनक्लेचर में या फिर उसके क्लासिफिकेशन में डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक का स्टडी करोगे तो आपको दूसरे का अपने आप ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर इनके नाम बेसिकली कॉमन नेम विच इज गिवन बाय द स्पेसिफिक नेम। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट अल्कोहल, क्योंकि आईयूपीएससी नेम इजी है बट कॉमन नेम इजी नहीं है फॉर द फिनॉल। ओके, अब कौन से इजी है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ऑर्थो पैरा प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्यों ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 1 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थो। ऑर्थो के पोजीशन पर कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोक्सी, और बाकी का ये जो बचा वाला है एक हाइड्रोक्सिल इंक्रीज दिस वन इज कॉल्ड एज द फिनॉल। मैंने पहले ही कहा था कि फिनॉल आईयूपीएससी एज वेल एज कॉमनली एक्सेप्टेड नेम है, तो यहाँ पर कॉमन नेम में क्या आएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये नेम यहाँ पर आएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल आ गया है, मतलब क्या, ये इसका ऑर्थो, मतलब अगर सिर्फ 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे डिपेंडिंग ऑन 1 2 पोजीशन 1 3 पोजीशन और 1 4 पोजीशन, वी कैन गिव द प्रीफिक्सेस ऑर्थो पैरामीटर एंड राइट देयर कॉमन नेम। बट if the hydroxyl group is more than 2, they have specific name according to the position of the hydroxyl group on that carbon atom of the benzene ring. Now look at here. Now the next one is this monohydric alcohol is again classified on the basis of the hybridized carbon atom similar to the alkyl halide. So monohydric alcohol, so it is depending on, or it is classified on the basis of the hybridized carbon atom as well as on the basis of the primary, secondary or the tertiary alkyl halide tertiary alkyl alcohol similar to the alkyl halide. So first one classification is based on the types of carbon atom. First one based on the types of carbon atom. Okay, so the first one is the primary alcohol, second one is secondary alcohol,
one is tertiary alcohol. And this classification is based on the hybridization. तो यहाँ पर सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 hybridized carbon atom. Classification based on hybridized carbon atom. यहाँ पर सबसे पहला होगा based on the type of carbon atom which is sp3 hybridized. Okay, so the first one is the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म में कौन आएगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल. तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या? ऐसा अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम. मतलब अल्कोहल अगर टर्मिनल पोजीशन के या फिर एंड पोजीशन के कार्बन पर अगर अटैच रहा, जो अदर एक ही कार्बन से अटैच रहेगा एडजेसेंट कार्बन से, देन इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्कोहल. क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पर ये कार्बन है प्राइमरी कार्बन. सेकेंडरी कार्बन एटम इज दैट CH3 CH2 CH3. तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन कौन सा? ये प्राइमरी हुआ, ये भी प्राइमरी हुआ. सेकेंडरी कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये दो अदर कार्बन को अटैच है. तो यहाँ पर अगर OH अटैच है तो दिस वन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कार्बन एटम. तो यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नाउ टर्शियरी, ऐसा कार्बन एटम जो अदर तीन कार्बन एटम को अटैच है. ओके, तो तीनों भी ये क्या रहेंगे? प्राइमरी. और यहाँ पर ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है ये तीन अन्य ग्रुप से अटैच है, दिस वन इज कॉल्ड एज द टर्शियरी. और यहाँ पर अटैच रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये जो कंपाउंड है दिस वन इज सिंपली कॉल्ड एज द मिथिल अल्कोहल. दिस वन इज कॉल्ड एज द आइसोप्रोपिल alcohol and this one is called as the tertiary butyl alcohol. As well as there is the iso, neo as well as secondary type of compound is also present. For example, अगर हमें secondary consider करना है तो C2H5 bond CH bond CH3. यहाँ पर अगर OH attached है, this one is the secondary carbon, but on the second carbon atom the methyl group is present, ethyl group is present. Due to that this one is has name secondary butyl alcohol. और यहाँ पर फिर से कौन सा नेम आ सकता है? नियो आ सकता है अगर सेकंड कार्बन पर कौन प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर. अगर प्राइमरी में कंपाउंड कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर तो CH3 CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, सॉरी यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH. तो ये पहला कार्बन, ये सेकंड पर दो मिथिल ग्रुप है. सो दिस हैज नेम नियोपेंटिल अल्कोहल. ओके, जैसे हमने अल्किल हैलाइड के समय स्टडी किया था सिमिलर वैसा. ओके, सो दिस ऑल कार्बन एटम आर sp3 hybridized. नाउ द सेकंड वन कार्बन एटम व्हिच इज sp3 hybridized is that allylic alcohol. Okay, अब allylic alcohol मतलब क्या? Hydroxyl group is attached to the sp3 hybridized carbon atom which is next attached to the double bonded carbon atom. That means ऐसा कार्बन एटम जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन वो कार्बन एटम जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, दिस वन इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. दैट मीन्स द एग्जांपल ऑफ दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH. तो यहाँ पर जिस कार्बन को OH अटैच्ड है ये कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसको अटैच्ड है? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को अटैच्ड है. इसीलिए हम इसे कौन से टाइप का अल्कोहल कंसीडर करेंगे? अल्किलिक अल्कोहल कंसीडर करेंगे. नाउ सी टाइप ऑफ द नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन
is of the benzylic alcohol. So in that benzylic alcohol, benzylic है, that means it is not, that means the hydroxyl group is not attached to the benzene. बेंजीलिक बोला गया, अगर फिनिल होता तो वहां पर क्या आता था, वहां पर बेंजीन रिंग अटैच्ड विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग व्हिच इज सिंपली कॉल्ड एज द फिनॉल. बट यहाँ पर बेंजीलिक बोला गया है, दैट मीन्स बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद द CH2 एंड दिस CH2 अटैच्ड विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन को अटैच्ड है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है. और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बेंजीन रिंग को अटैच्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजीनिक अल्कोहल. दैट मींस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज द बेंजीनिक अल्कोहल. नाउ next one is, this one is the A type, this one is the next one, that is hydroxyl group attached to sp2 hybridized carbon atom. अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहने वाला कौन सा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विनिलिक अल्कोहल. जैसे विनिलिक हैलाइड था वैसे ही विनिलिक अल्कोहल. तो एग्जांपल क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH. तो यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच्ड है और डबल बॉन्ड को अटैच्ड होने की वजह से ये कार्बन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनिलिक अल्कोहल बोलेंगे. ओके. और अगर बेंजीन रिंग के फॉर्म में अगर उसको कंसीडर किया जाए तो नेक्स्ट नेम क्या है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, C टाइप ऑफ दैट कंपाउंड इज दैट इट इज कॉल्ड एज द फिनोलिक अल्कोहल. या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हाँ, फिनोलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं या फिर एरोमेटिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द फिनोलिक अल्कोहल. या फिर और दिस इज कॉल्ड एज द सिंपली हम बोल सकते हैं फिनोलिक अल्कोहल और सिंपली फिनोलिक. दिस वन इज इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. दैट मींस C यहाँ पर यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बन कौन सा रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहेगा. तो यहाँ पर बेंजीन रिंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस वन इज नेक्स्ट वन एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज द फिनॉल और फिनिलिक अल्कोहल इन विच द कार्बन एटम इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. Next one is the ethers. Now what is mean by ethers? So ethers are the, it has three definition depending on the replacement of the hydrogen as well as hydroxyl group as well as the alkoxyl group. So depending on that it has three definitions. First one is that the general formula of that ethers is nothing but the R bond O bond R. Okay, or simply we can say that generally bond O R. That means the oxygen is bonded with the two alkyl group or two aryl group, then this compound is called as the ethers. ईथर में एक ऑक्सीजन होता है जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है और वो ऑक्सीजन दो अल्किल ग्रुप को, दो अरिल ग्रुप को या फिर एक बॉन्ड अल्किल से और एक बॉन्ड अरिल ग्रुप से अटैच्ड रह सकता है. उसके बेसिस पर इसका फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड ओ बॉन्ड. सिंपल दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट ईथर. And these two bonds which is bonded to the oxygen, it is satisfied
by the two similar alkyl group, two different alkyl group, two aryl group, or one alkyl or one aryl group. So simply we can say that R bond O bond R or R bond O bond AR. So R alkyl group के लिए और AR aryl group के लिए. So depending on that it has name. So here the first definition of ether is that it is a hydroxyl, it is a alkyl derivative of alcohol. First one is that क्या है ये? It is alkyl derivative of alcohol. मतलब क्या? अगर हम अल्कोहल एज एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, इस अल्कोहल की रिएक्शन अगर अल्किल ग्रुप के साथ हुई, ओके, अल्केन के साथ हुई, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. किससे रिप्लेस होगा? R से रिप्लेस होगा. मतलब अल्किल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर ऐड होगा. तो यहाँ पर कौन आएगा? मतलब अल्कोहल में का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ पर कौन आ रहा है? R आ रहा है, दैट इज अल्काइल ग्रुप आ रहा है. इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर अल्किल ग्रुप आएगा. ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ द अल्कोहल, दैट इज द R bond O bond R. First one definition. Second one definition, it is a derivative of water molecule. Why it is the derivative of water molecule? Because in that water molecule oxygen is present at the center and this oxygen is bonded with the two hydrogen. So in that case, if both the hydrogen on the water molecule or on the oxygen of water molecule is replaced by the alkyl group, then it is called as the ether. Okay, मतलब हम बोल सकते हैं it is the derivative of water molecule और it is the alkyl again, क्योंकि water में का कौन रिप्लेस होगा? वहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. So it is the alkyl derivative of water molecule. So HOH ये वाटर मॉलिक्यूल है. अगर इसको हम R से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें R bond O bond R मिलेगा. मतलब ये किससे फॉर्म हुआ है? वाटर से फॉर्म हुआ है. तो वाटर से फॉर्म होने की वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज द अल्काइल, क्योंकि हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है. सो इट इज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड नाउ द थर्ड वन इज it is a alkoxy derivative of alkane. किसकी डेरिवेटिव है ये? अल्कोक्सी डेरिवेटिव है. किसकी? अल्केन की अल्कोक्सी डेरिवेटिव. मतलब क्या? R bond H is the alkane. अगर अल्केन को OR, this one is the alkoxy, we can say that the sodium alkoxide. Okay, जो हमने कौन से सिंथेसिस में स्टडी किया था? अल्कोक्सी ग्रुप, जो वहाँ पर होता है इथेरिफिकेशन में स्टडी करे थे, अल्किल हैलाइड के. तो यहाँ पर RH में से जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, these hydrogen atom replaced by the alkoxy group, then the resulting compound is called as R bond O bond R. तो यहाँ पर ये OR किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर प्लेस होगा. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज द अल्कोक्सी बिकॉज OR इज कॉल्ड एज द अल्कोक्सी. So it is the alkoxy derivative of alkane in which the hydrogen of the alkane is replaced by the alkoxy group. It is the alkyl derivative of the water molecule because in that water molecule two hydrogen atoms replaced by the alkyl group. And the first one is it is the alkyl derivative of alcohol in which the hydrogen from the alcohol is replaced
by the alkyl group, then the resulting compound is called as ether. R bond O bond R. तो अब यहाँ पर R सिमिलर भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं, एज वेल एज एक R हो सकता है और एक AR भी हो सकता है. So depending on that, if the similar as well as the different alkyl group present or attached with that oxygen atom, then it is classified into the two types. So the classification of ethers. So the first one, depending on the similar alkyl or the aryl group present or attached to that oxygen atom, then it is called as the symmetrical ether. Okay, or it is also called as simple ether. अब एग्जाम्पल क्या रहेंगे, अगर दोनों भी alkyl group सिमिलर है तो यहाँ पर जैसे CH3 bond O bond CH3, it is the example of the symmetrical alkyl. Second one is C6H5 bond O C6H5. तो यहाँ पर दोनों में मिथिल ग्रुप है और O को बॉन्ड O को R कहते हैं. तो दो मिथिल सिमिलर है, दो है इसलिए डाई यूज करेंगे, ग्रुप सिमिलर है इसीलिए मिथिल यूज करेंगे और लास्ट में O को रिप्रेजेंट करेंगे बाय ईथर से. तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, डाई मिथिल ईथर. सिमिलरली यहाँ पर C6H5 है. दिस वन इज द एरोमेटिक रिंग व्हिच इज रिटन बाय यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला. ये फिनिल ग्रुप है, ये फिनिल ग्रुप है, मतलब एरोमेटिक रिंग AR. सो दो फिनिल ग्रुप होने की वजह से इसका नाम क्या आएगा, डाई फिनिल ईथर. ओके, एज वेल एज दिस ईथर रिप्रेजेंट द IUPAC nomenclature, and if we considered as the common nomenclature, then the smallest alkyl group with the oxygen take the name as alkoxy, and the other one largest alkyl group take the name as the parent alkane. मतलब लोअर alkyl group और ऑक्सीजन को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका नाम क्या डिनोट करेंगे, अल्कोक्सी डिनोट करेंगे इन अ कॉमन नॉमेनक्लेचर. और जो हाईएस्ट कार्बन वाला alkyl ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको हम पैरेंट अल्केन का नाम देंगे. मतलब यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथॉक्सी, क्योंकि मिथिल ग्रुप विद ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड एज द मिथॉक्सी. और दूसरे साइड का जो अल्किल ग्रुप है वो कितने कार्बन का है, एक ही कार्बन का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका अल्केन नेम क्या होगा, मीथेन. सो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज मिथॉक्सी मीथेन. यहाँ पर क्या आएगा, अब ये भी फिनोलिक ग्रुप विद ऑक्सीजन और यहाँ पर C6H5, मतलब यहाँ पर क्या होगा इसका नेम फिनॉक्सी. अब फिनिल ग्रुप है तो वहाँ पर फिनॉक्सी और यहाँ पर बेंजीन. तो बेसिकली इसका कॉमन नेम डिपेंड करेगा कि एरोमेटिक रिंग पर, मतलब ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, बेसिकली दिस वन इज कॉल्ड एज अ बाइफिनिल ईथर इन दैट IUPAC nomenclature, not like that the ethoxy or methoxy. अगर यहाँ पर एक फिनिल ग्रुप और एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट ना, then we write the IUPAC name of that compound. Okay, so likewise अगर हम यहाँ पर C2H5 कंसीडर करेंगे, C2H5 bond O bond C2H5, then their IUPAC name is diethyl ether, and इसका कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पे, इथॉक्सी, क्योंकि इथिल ग्रुप विद ऑक्सीजन है और अल्केन का नाम मीथेन, दो कार्बन की वजह से इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन. सो इट इज द फर्स्ट classification of ether in which both the alkyl group which is bonded to the oxygen are similar, then it is called as the symmetrical ether or the simple ether. Okay. Now the next one classification of that ether is unsymmetrical ether or the mixed ether. So in which the two alkyl group attached
oxygen bonded to the oxygen atom, it will be different than the symmetrical ether. So यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे CH3O C2H5, likewise CH3O C6H5, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर C2H5 बॉन्ड को बॉन्ड C3H6। तो यहाँ पर इस साइड का अल्किल ग्रुप 1 कार्बन का है, इस साइड का 2 कार्बन का, मतलब दोनों भी अल्किल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। When the two different alkyl group is bonded to the oxygen atom, then their name is written in a alphabetical order in the IUPAC nomenclature. हमें कौन से लाइन में लिखना है? वहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर नाम क्या होगा इसका? पहले यहाँ पर ये मिथिल इथिल, तो मिथिल और इथिल में पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा। तो यहाँ पर इथाइल मिथाइल इथर। वैसे यहाँ पर नाम क्या होगा? फिनाइल है और मिथिल है, तो फिनाइल में P और मिथाइल में M, पहले कौन आएगा? M आएगा। तो यहाँ पर नाम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। देन यहाँ पर इथिल प्रोपिल, इथिल और प्रोपिल में से प्रोपिल है मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पर प्रीफिक्स लगेगा N, और यहाँ पर मिथिल है, सॉरी इथिल है, तो ऑब्वियसली इथिल पहले आएगा, तो यहाँ पर नेम क्या होगा? इथिल एंड प्रोपाइल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट देयर IUPAC नोमेनक्लेचर। मैंने पहले ही कहा था कि लोवेस्ट अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन को हम अल्कोक्सी का नाम देंगे और अदर हायर अल्किन को हम अल्केन एज अ पेरेंट नेम वहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या होंगे? यहाँ पर प्रीफिक्सेस होंगे विच इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द अल्केन। सो यहाँ पर मिथॉक्सी, दूसरा ग्रुप है इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन, यहाँ पर मिथॉक्सी benzene. This methoxy benzene is also called as the anisole, which has structure in that manner. This one is called as the anisole, which has a specific name. Now the next one is ethoxy, क्योंकि छोटा ग्रुप इथिल ग्रुप है और बड़ा ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप है, कार्बन 2 कार्बन 3, इसलिए ऑक्सीजन इथेन ग्रुप के साथ इथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर इथॉक्सी नाम लेगा, और यहाँ पर अल्केन कौन सा रहेगा? प्रोपेन। तो नेम होगा इथॉक्सी प्रोपेन। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्रिकल एंड द अनसिमेट्रिकल alkyl group as well as the aryl group, it is classified into the 2 types, that is the symmetrical ether which is called as the simple ether, and next one is the unsymmetrical ether which is called as the mixed ether. Now here we studied about their nomenclature step by step. Now the next one is that nomenclature of that compound. So firstly we studied about the nomenclature of alcohols, then phenols and then ether. So in nomenclature of alcohols we know that the compound has name depending on the common nomenclature and the IUPAC nomenclature, and we know the rules which is used for the naming of that compound or used for the nomenclature of that compound. So for the alcohols in common name, these alcohols is called as the alkyl alcohol. That means the alkyl group used as the prefixes which is right before the name of the alcohol in the common nomenclature, as well as we can use the prefixes that is the N, iso, secondary, tertiary, neo. Okay. Now in a IUPAC nomenclature, this alcohol is called as alkanol. That is E of the alkane is replaced by the OL, so it has parent name alkanol, or it gives the parent name as the alkanol, and the main and the branch if present on that longest chain, it write as the
prefixes before the name of the alkane. So the compound which is we write here, first one is there is the name of compound, sorry, structure of the compound. Then next one is their common name which is represented by the alkyl alcohol, and the lastly IUPAC which is represented as alkanol. So हमें रूल पता है, कॉमन नेम में 5 प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, 5 प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें यूज करना है उसकी नेम। और IUPAC नेम में फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जिस लॉन्गेस्ट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उस चेन को हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद lowest number rule, give the lowest number to that carbon atom which is nearer to the first branch or which is nearer to the main functional group. Okay, third one is if the branch is present on the longest chain, then write the position of the or identify the position of that branch with their name and write the name with their position. And lastly, write the name in a single word by using dash as well as dash between two names and comma between two numbers. Okay. So the first one compound is that general example हमें पता है मिथिल अल्कोहल. Okay. So ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर CH3OH. The name common name इसका क्या रहेगा, मिथिल. The name of alkyl group is methyl because it contains only one carbon atom. और OH के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, मिथाइल अल्कोहल. IUPAC नेम में क्या लिखना है, अल्केनॉल. अल्केनॉल मतलब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक कार्बन के अकॉर्डिंग अल्केन का नाम क्या होगा, मीथेन. और मीथेन को कौन अटैच है, OH, तो ई रिप्लेस कर यहाँ पर क्या लिखना है, OL लिखना है. सो राइट इट एज द नेम ऑफ दैट मिथिल अल्कोहल इज द मिथानॉल. सेकंड वन इज C2H5OH. The common name of that compound is ethyl alcohol and IUPAC name is ethanol. Okay. Now third one is C3H7OH. कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या होगा, N-प्रोपाइल अल्कोहल. अब N-प्रोपाइल अल्कोहल है मतलब क्या है कि यहाँ पर OH कौन से पोजीशन पर है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर फिक्स यूज हुआ है मतलब यहाँ पर नंबर यूज होगा. CH3 CH2 CH2OH ऐसा इसका स्ट्रक्चर हुआ. 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो OH पहले कार्बन को भी अटैच ले सकता है, सेकंड कार्बन को भी अटैच हो सकता है. दोनों फर्स्ट कार्बन है और एक सेकंड कार्बन है, तो इसलिए हमें OH ग्रुप की पोजीशन मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और थर्ड, तो OH कौन से कार्बन को प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन को प्रेजेंट है. तो फर्स्ट कार्बन को प्रेजेंट होने की वजह से हम यहाँ पर नेम किस तरह से लिखेंगे, 1-प्रोपैनॉल. ओके, नाम क्या होगा इसका, 1-प्रोपैनॉल. ये नेम होगा क्योंकि अल्कोहल ग्रुप बेसिकली 1-प्रोपैनॉल भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर. हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोपेन का नाम लिखेंगे, ई को रिप्लेस करके OL डालना है, लेकिन OL के पहले क्या डालना है कि OL मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन को अटैच करते हैं. यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन-1-ऑल. ये इसका IUPAC नेम होगा. नाउ द थर्ड वन इज CH3CHOH CH2. Now the hydroxyl group present on the secondary carbon atom, but this secondary carbon atom is attached to the methyl group. That means it has prefix iso. तो यहाँ पर नेम क्या आएगा, आइसो. कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल. इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल. ये नाम होगा. नाउ IUPAC में अब OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2. पहले वाला प्रोपेन 1-ऑल है तो दूसरा क्या है, प्रोपेन 2-ऑल. नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 CH CH3. यहाँ पर
OH। ओके, अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी पर OH प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पर इस साइड में, क्योंकि इस कार्बन को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, तो इस साइड में कौन प्रेजेंट है? इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप नहीं। मतलब यहाँ पर आइसो प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, लेकिन OH कहाँ पर प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करेंगे सेकेंडरी। कार्बन कितने हैं? 4, तो इसीलिए यहाँ पर नेम क्या आएगा? अल्किल का ब्यूटाइल और अल्कोहल। अब यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पर IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में देखो ये लॉन्ग चेन 4 कार्बन की 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है, तो 2 पर OH है और लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, उनकी वजह से इसका अल्किल नेम क्या होगा? ब्यूटेन होगा। E को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर OH लिखना है, OH के लिए OL यूज करना है, पर OL की पोजीशन OL के बिफोर लिखनी है, जो कि है सेकंड। इसका नेम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल। नाउ द नेक्स्ट वन इज CH3 CH अब यहाँ पर OH जो प्रेजेंट है वो फर्स्ट कार्बन को ही है, लेकिन यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है एज अ ब्रांच। तो ब्रांच प्रेजेंट है, लेकिन ये पहला कार्बन और ये सेकंड पर 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? नियो। नियो कार्बन कितने टोटल? 5, so the name of alkyne is pentyl and alcohol। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3, तो 3 के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन में से E को निकालना है, उसके बाद प्रोपेन में कौन से कार्बन को OH अटैच है? फर्स्ट कार्बन को, तो यहाँ पर लिखो 1OL। लेकिन इस कंपाउंड में 2 ब्रांचेस भी प्रेजेंट है और दोनों भी ब्रांचेस का नाम क्या है? मिथाइल, और पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन। तो हमें वो पोजीशन 2 बार लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 2 सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2, 2 होने की वजह से हमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा? डाई, ये प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। 2 पैनल में कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 डाई मिथाइल, और इसका पैरेंट नेम क्या आएगा? प्रोपेन 1। ओके, ये इसका होगा IUPAC नेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये है अल्किल अल्कोहल का फॉर्मूला, जो हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया है यहाँ पर। सो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो बेसिकली हम इसको कॉमनली बोलेंगे अल्किल अल्कोहल। ओके, और इसका IUPAC नेम, जब डबल बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो नंबर किस साइड से देना है? जिस साइड से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस साइड से IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबर देना। मतलब ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड पर प्रेजेंट है OH, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर में हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ ब्रांच कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। उसके बाद ये जो कार्बन आइटम है ये डबल बॉन्डेड, मतलब अनसैचुरेटेड है, अल्कीन का कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर अल्कीन का नेम आएगा। तो यहाँ पर नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है इसीलिए, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? फर्स्ट कार्बन पर, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोप 1, इस तरह से इसका नाम होगा। तो इसका नाम रहेगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोप 1 EME। ओके, लुक एट योर वर्ड्स।